Fine. So partition values, when I talk about partition values, as I told you, median was a partition value that you studied, but median will be called median now. It has one more name. Different partition values that we know is median, quartiles, deciles, and percentiles. Actually, I should not say median as a separate partition value, because we already have a median included in quartiles, but there are overlapping, but you can say median is a separate quartile as well. Now let us understand quartiles first of all. Now there are types of quartile, three types of quartile: quartile 1, quartile 2, and quartile 3. Now from the word quartile, quartile से कौन सा वर्ड दिमाग में आता है? मैथमेटिकल कौन सा टर्म दिमाग में आता है? यस, परफेक्ट वेदांगी, क्वार्टर. सो क्वार्टर का मतलब क्या है? नाउ वेदांगी हैज टोल्ड क्वार्टाइल से वर्ड क्वार्टर दिमाग में आता है. नाउ कैन यू टेल मी व्हाट इज अ क्वार्टर? एनीबडी यू कैन टेल मी. If nobody, then Vedangi has to answer. No, 1/4, 1/4. Yeah. So basically, can I say division by 4? 4 पार्ट में डिवाइड करता है. Now let us take an example. अगर समझो ये मेरा एंटायर डेटा है, अगर मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड करूंगा, तो देखो ना, ये पॉइंट 20, ईच पार्ट विल बी 25%. करेक्ट. नाउ अगर इसको मैं क्वार्टाइल 1 बोलूंगा, इसको मैं क्वार्टाइल 2 बोलूंगा, और इसको मैं क्वार्टाइल 3 बोलूंगा. समझ में आ रहा है? व्हेन देयर आर 4 डिविजन्स, देयर आर ओनली 3 क्वार्टाइल्स. ये समझ में आया? Now, quartile 1 represents where 25% of the data ends. The quartile 1 represents जहां पे first 25% of the data include होता है. Quartile 2 represents जहां पे first 50% data represent होता है. Quartile 3 represent जहां पे first 75% data represent होता है. समझ में आ रहा है? 25, 25, 25. Is this very clear? क्वार्टाइल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया. कैसे ढूंढने का, क्या ढूंढने का, हम लोग देखते हैं. क्वार्टाइल मतलब डिवीजन of the data or anything into 4 equal parts. तो अगर if everything is 100% and we are dividing everything into 4 equal parts, so each will be 25%. Is this very clear? Very clear? ये स्लाइड क्लियर है क्या? मेरे को बताओ, जल्दी 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 मैसेज करो. Okay, Nikhil says yes. Krish from Ghatkopar says yes. Manish from DN Nagar says yes. Tanvi JB Nagar says yes. Harshal from Ghatkopar says yes. Okay, perfect, perfect, perfect. Now, students, slowly, steadily, we will get into the chapter, and as we get comfortable, we will pick up pace. Okay? Yes, Varun, you also told yes. He's sending me smileys. Now, understand, there are two types of data that we have studied in standard 9. One is group data and ungrouped data. Now somebody will tell me what is group data and what is ungrouped data before we get into this. Okay, who is ready to answer me what is group data and ungrouped data? Who will answer me? Come on. Who is ready to answer me? Who knows what is a group data and ungrouped data? Nobody. From the entire lot, no one. Just type me if you can answer, or if you know what is an group data and ungrouped data. Nobody? Are you sure you people are going to take maths? Come on, somebody has to know. Am I audible, students? Or nobody wants to answer? Am I audible? Say yes if I'm audible. Okay, Nikhil. Thank you. So anybody who knows what is a group data and ungrouped data? Anybody who knows what's a group data and what is ungrouped data? लिखो I know it. चलो I know तो लिखो I know. I don't know तो लिखो I don't know. चलो. Okay, Sneha says I know. Let us pick up Sneha only. Sneha Panchal from Vikroli. I don't know. I don't know. Most of the people don't know. Hi, Sneha. You can hear me, Sneha? Hello, Sneha. She has muted herself. Okay, she doesn't want to answer. Anybody else? Sneha from Vikroli said, I know, but she doesn't want to answer. Sneha, you have to speak. Okay, I'm unmuting you again. You want to answer, right? Okay, I'll try once again with Sneha. If not, then Manish is ready to answer. Okay, Manish, for some reason, I'm not able to unmute Sneha again.
Hello, Manish, if you can hear me. Varun, I don't want you to search it on Google and send me copy paste the data here, okay? I know you are smart. Smarty. Okay, we will talk to Manish. Where is Manish? Manish. For some reason, it's not working. Okay, there's some problem in unmuting people. So let me try randomly somebody. I want somebody to speak to me. That's strange. Okay. What we will do is I will answer. For some reason, nobody is getting unmuted. Okay. Okay, Harshal wants to answer. Okay, Harshal, I'll try to unmute you. I tried Sneha and I tried Money as well, but I failed. Oh, I was successful in. Hi, Harshal. Hello, sir. Good Good morning. morning. Very good morning, Happy Harshal. Independence Day, sir. Happy Independence. I'm really sorry. I forgot. Happy Independence Day to all of you. Yes, Harshal. How are you? अरे वो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोल के भाग गया हर्षल. He just wanted to wish me. He did not want to answer, I believe. हर्षल. हेलो. हाँ, इंडिपेंडेंस डे विश करने के लिए अनम्यूट करवाया मेरे से. सर नहीं, वो म्यूट हो गया था. आपके पास से ही म्यूट हुआ था. बस मेरे पे नाम डाल दो बस. अभी ऐसी है. ऐसी करो तुम लोग. कोई बात नहीं हर्षल. हाउ आर यू? Fine, sir. How are you? Very good. I'm very good. So tell me, so that in fact answer wrong भी है तो चलेगा. We will discuss what is group data and what is ungroup data. Sir, group data means analyzing the data. Or ungroup data, we don't analyze the data. No, yeah, it is in the listing form. I think you only told in the last lecture. हाँ, क्या बोला था मैंने? Means list simple है. form में ना group ungroup data is in list form. Okay, मतलब बहुत सिंपल है ना. अगर ऐसा दिया है 25, 30, 60 और उसका फ्रीक्वेंसी तो वो ग्रुप्ड हो गया, अनग्रुप्ड हो गया. और क्लासेस दिया है 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 तो ग्रुप हो गया, राइट? अभी ये हो गया वो हाउ इट लुक्स. मैंने एक और चीज बताया था लास्ट लेक्चर में हर्षल कि व्हाई व्हेन डू वी यूज ग्रुप डेटा एंड व्हेन डू वी अनग्रुप डेटा? Sir, that I don't remember. ओके, हर्षल यू फ्रॉम व्हिच ब्रांच? घाटकोपर. अच्छा हर्षल, अभी हम लोग देखते हैं. मुझे बताओ, अगर मैंने ऐसा एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल वी हैव नाउ अराउंड 40 स्टूडेंट्स इन दिस लेक्चर, ठीक है? अगर मैंने बोला एज ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम, ओके, वी विल अज्यूम दिस टू बी अ वर्चुअल क्लासरूम. अगर मैंने बोला एज ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम, क्या क्या एज निकलेगा? 15, 16. 15, 16, ज्यादा से ज्यादा 14, 15, 16, 17 भी निकल सकता है. okay? अच्छा, इसके लिए तुम ग्रुप बनाओगे क्या? 15 to 16, 16 to 17, और कितना लोगे लिखोगे कि 15, 16, 17 लिख के तुम लिख दोगे 15 के कितने, 16 के कितने, 17 के कितने? हाँ, वैसे ही लिखेंगे. वैसे लिखूंगा. अभी ऐसा सोचो कि अगर मैंने बोला एज ऑफ पीपल इन घाटकोपर, तो 0 रहेगा जो अभी अभी ताजा ताजा पैदा हो गए, और 100 क्रॉस्ड भी लोग रहेंगे. हाँ. तो अभी इसके लिए तुम ऐसा लिखोगे क्या? ऐसा टेबल बनाओगे क्या? 0 के कितने, 1 के कितने, 2 के कितने, 3 के नहीं, कॉलम्स बनाएंगे. ग्रुप बना देगा ना, 0 to 10, 10 to 20. तो समझ में ना, जब डेटा रेंज बहुत बड़ा है तो हम लोग ग्रुप के लिए जाते हैं. जब डेटा रेंज बहुत छोटा है तो हम लोग अनग्रुप के लिए. ओके, थैंक यू हर्षल. आई विल म्यूट यू. वेलकम सर. I hope everybody understood the major difference between grouped and ungrouped, which you should have already known because you have studied statistics basic in standard 10. Everybody understood what is group and ungrouped? Only Sachi says yes, others have not. What about others? Tell me yes or no. Understood or not? Quickly. Yep. Sachi says, Linesh says yes, Manish says yes, Vedangi says yes, Richal, Tanvi Nayak, yes. Okay. Most of you have understood. Okay. Good. Very good, Rajesh. Now, since now we have understood there are two types of data. One is grouped and other is ungrouped. So definitely the method to find out quartiles for grouped will be different and for ungrouped will be different.
So first we will discuss about ungrouped data. It's very simple. Now the formula to find quartiles for ungrouped data is QI. I represents कौन सा quartile ढूंढना है. Q1 मतलब first quartile, तो I will be 1. Q2 मतलब second quartile, मतलब I will be 2. Q3 मतलब third quartile, मतलब I will be 3. So based on what quartile you are finding, the value of I could be 1, 2 or 3. और n मतलब number of observation, total कितना observation है, that would be 1. Now here you have to remember students, QI में I could be, I का value क्या क्या possible है quartile में, तुम लोग मेरे को खुद बताओ. I का वैल्यू क्या क्या पॉसिबल है, जल्दी मैसेज करके बताओ. क्वार्टाइल के लिए I का वैल्यू का पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबल है. क्या बात है वेदांगी फ्रॉम विक्रोली, वेरी स्मार्ट ऑफ यू. तो I कैन बी, here I could be either 1, here I could be either 2 or here I could be either 3. तो क्वार्टाइल के लिए I could be 1, 2 and 3. Yes, perfect Sujal, perfect. Now students, I want everybody to note down the formula. Take a 2 minute and by heart the formula, because this becomes a very important formula. QI is equal to value of I into n plus 1 upon 4, the term, fourth observation rather. I is the quartile. Which quartile you are trying to find out, Sneha? I hope I am clear about the value of I. Okay, please students, once you're done writing, let me know. Done. Okay, done. Harsh is done, Siddhi is done, Manish is done, Tanvi is done, Vedangi is done, Nikhil Deshpande is done, Shruti is done, Neeraj is done. Okay, I believe most of you are done. Let us go to a sum. Okay, now there are few sums from the textbook I have taken. There are very less basic sums, so I've put sums of my own also, so that we get practice of all type of sums, especially at the beginning. Okay. Now the marks of 19 students are given below: 41, 21, 38, 27, 31, 45, 23, 26, 29, 30, 28, 25, 35, 42, 47, 50, 29, 31, 45. Calculate all the quartiles for the above data. Now see students, as you know, it's very important to arrange the data in either ascending order or descending order in the quartile. Okay, now quickly I want you to arrange the data in ascending order. Quickly everybody start. I'm giving you 2 minutes to arrange the data in ascending order. Then I'll pick up somebody to answer me. Quickly, if you're done, let me know. Once done arranging the data in ascending order, let me know. Have you arranged the data in ascending order? See, everybody has to keep a notebook and pen with you. Hey, as always, he will be fast. Okay, what about others? Arrange the data quick. Quickly. Okay, Swarnim, I want you to write the branch name, or else I don't know where do you belong to, so I would not be. Okay. Who else is done? Harshal from Ghatkopar is done. Tanisha has typed everything. Okay. What we will do is we will try and speak to Tanisha. Hi Tanisha. Hi Tanisha. Hi sir. Good morning. Good morning. Tanisha, you are from which school? St. Louis. St. Louis. Okay, not a problem. Tanisha, have you arranged the data in the ascending order? Yes sir. Okay, we will do the entire sum together. Okay, now you have to arrange the data in ascending order for me. Can you tell me the answer? Yes. Yeah, please tell me. 21. 21. 23. 23. 25. 25. 26. 26. 27. Yep. 28. Yes. 29. Yes.
29, क्या बात है. Now students, everybody note that 29 is repeated twice, so she has made sure that it is written twice. Yes, go ahead. 30, Yep, 31, Yep. 31, yep. 35, 35, Perfect. 38, क्या बात है? 41, 41, 42, 42, 45, 45, 47, 50. 47, 50. Fantastic. So all of you have arranged the data in the ascending order, right? I hope everybody has done it. So pay attention now. Now Tanisha will help us through the sum, right, Tanisha? Yes, sir. Tanisha, can you tell me what is the value of n here? 19. The value of n is 19. अच्छा, what do we have to find precisely? The question says all quartiles. उसका मतलब क्या क्या ढूंढना है? अगर तुम क्वेश्चन में पढ़ोगे ना, इधर देखो लिखा है कैलकुलेट, क्या लिखा है? कैलकुलेट ऑल क्वार्टाइल्स. ठीक है, दिख रहा है? मैंने Yes, इसका sir. आंसर दिया है कैलकुलेट और क्वार्टाइल्स. तो क्या ढूंढना क्या है हमको? Q1, हाँ, और सिर्फ Q1 ढूंढना है? yes. All the quartiles, Q1, Q2, Q3. हाँ, ठीक है, परफेक्ट. तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला हमको मालूम है, QI is equal to value of I into 1 n plus 1 1 upon 4. फोर्थ ऑब्जर्वेशन. Observation. उसका जो आंसर आया वो नहीं, वो पोजीशन पे जो ऑब्जर्वेशन रहेगा वो. तो अभी मुझे बताओ, क्यू आई के जगह पे क्या आ जाएगा? Q1. तो वैल्यू ऑफ आई ऑब्जर्वेशन क्या हो जाएगा? 1. n प्लस 1 हो जाएगा 19 प्लस 1 अपॉन 4. नाउ ये फॉर्मूला में स्टूडेंट्स आई के जगह पे मैंने 1 डाला और n के जगह पे 19 डाला. आई के जगह पे 1 डाला क्योंकि पहले हम लोग क्वार्टाइल 1 ढूंढ रहे हैं. n तो 19 है सम का, राइट तनिषा? Yes. तनिषा अभी आगे क्या करूं? वैल्यू ऑफ 1, 19 प्लस 1 कितना होता है? 20. कैसा 20? 19 प्लस 1 20 होता है? हाँ, Huh? 19 प्लस 1 20 होता है. 19 plus 1. हाँ, 20 होता है. हाँ. वेरी गुड. फिर सो 20 इंटू 1 20 हो गया, अपॉन 4 हो गया. तो वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा आगे? हाँ, वैल्यू ऑफ फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, राइट? सो हाँ. तनिषा, कैन यू टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? 27th observation. ओके, परफेक्ट. कैसे तनिषा बताया? देखो तनिषा ने कैसे बताया, सब लोग सुनो. ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, ये है हमारा सेकंड ऑब्जर्वेशन, थर्ड ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन, फिफ्थ ऑब्जर्वेशन, ये है हमारा. तो ये हो गया हमारा क्वार्टाइल 1, राइट? दिस इज व्हाट यू डिड, राइट? Yes, sir. करेक्ट तनिषा? क्या बात है. सो क्वार्टाइल 1 is 27. Now everybody else and even Tanisha, you stay unmuted. I want you to everybody to solve quartile 2 and quartile 3 as well and tell me the answer. Yes, Harshal, next will be you, don't worry. Tanisha, you started solving, right? Everybody has to start solving and tell me the value of quartile 2 and quartile 3. Use the formula as well. I want you to check your calculation, नीरज. डेसिमल में आता है और उसके लिए क्या करना है मैं बताऊंगा नीरज, बट आई डाउट मैंने फर्स्ट सम लिया रहेगा. ठीक है, जैसी तनिषा को आंसर आता. ओके, क्वार्टाइल 2, मनीष हैज गॉट द आंसर, हर्षल ऑलरेडी गॉट द आंसर. वेरी गुड हर्षल. नीरज बेटा एक बार कैलकुलेशन चेक करो ना. मनीष इज राइट, हर्षल इज राइट, हेत इज राइट. तन्वी, ओके, उसने म्यूट कर दिया अपने आप को. ठीक है, हम लोग हर्षल को अभी पिक करते हैं. हेलो हर्षल. Hello. हेलो, गुड मॉर्निंग हर्षल. Good morning, sir. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे. Same to you, sir. थैंक यू सो मच. आंसर आ गया क्वार्टाइल का 2 का? हाँ. अच्छा, मुझे एक एक स्टेप करके बताना, ठीक है? स्टेप डिक्टेट करना सर, ताकि सबको समझे. सबसे पहले क्यू आई है, आई के जगह पे क्या डालू? Q2. Q2. सर सेकंड मतलब क्वार्टाइल ना. सेकेंड क्वार्टाइल, परफेक्ट. क्यू आई है, फर्स्ट क्वार्टाइल ढूंढ रहे थे तो आई के जगह पे 1 आया. अभी 1 सेकेंड क्वार्टाइल ढूंढ रहे तो हम लोग के जगह पे क्या, आई के जगह पे क्या आएगा हर्षल? Q2. 2. फिर क्या आएगा? वैल्यू ऑफ आई, मतलब वापस वैल्यू ऑफ क्या हो जाएगा? Value of 2. और n Value प्लस of 1 हो 2. जाएगा. हाँ, और n प्लस 1 हो जाएगा 19 प्लस 1, राइट? 19 plus. हाँ. अच्छा, अभी 19 प्लस 1 20 है,
अभी यहाँ पे तुम लोग देखोगे, जस्ट मैं स्टेप कैसे आया ये समझाता हूँ। 19 + 1 कितना है हर्षल? 20। और 20। 20 × 2 करूंगा तो 40 आएगा, और अपॉन 4 वैसे, राइट? व्हाट इज 40 अपॉन 4 हर्षल? 40 upon 4, 4 is equal, हर्षल किधर चला गया? अच्छा, म्यूट हो गया गलती से। क्या म्यूट कर देते तुम लोग खुद को वापस? हेलो सर। हाँ हाँ, म्यूट हो गया। क्यों म्यूट कर दिया अरे खुद सर को? मैंने म्यूट नहीं किया सर, आपके इधर से ही हो रहा है। मेरे इधर से कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। 40 अपॉन 4 कितना है? 40 upon 4 10 होता है। 10 होता है, परफेक्ट। 40 अपॉन 4 हो गया 10। व्हाट इज द 10th ऑब्जर्वेशन? 10th ऑब्जर्वेशन 31। देखो 27 वाज द 5th ऑब्जर्वेशन, तो ये 6th हो गया, ये 7th हो गया, ये 8th हो गया, ये 9th हो गया, और ये 10th हो गया। तो ये हो जाएगा मेरा Q2, परफेक्ट। हर्षल Q3 भी म्यूट मत करो अपने आप को, ऐसे ही रखो, और Q3 भी ढूंढो, फिर हम लोग सर डिस्कस फाइंड करें। किया है मैंने, अच्छा, किया। तो 2 मिनट रुक आंसर भी जाओ। दिया है। अरे हाँ ठीक है, भड़को मत, तुम लोग भड़क इतने इमोशनल क्यों हो सब अरे लोग? थोड़ा नहीं देर सर, रुकते हैं मतलब ताकि सबको टाइम, मैं भी मजाक कर रहा हूँ, डोंट वरी। सबको आंसर ढूंढ लेने दो। ओके, लिनेश को आंसर आ गया, बाकी सबको आया आंसर? लिनेश पुजारी हैज फाउंड द आंसर। सर रिचल वो बैच में एक तो दो धैर्य आंसर देने देता नहीं है। धैर्य उसको आंसर देना कितने बार है। बोला है मैंने। अच्छा, बोला है। फटफट फटफट आंसर देता रहता है ना। पता है, पता है, पता है। हम गरीबों को भी मौका दो सर। आ गया ना अभी? अभी हम लोग, हम सब गरीब, मुझे भी आंसर देने नहीं देता वो हर्षल, टेंशन मत लो। ओके, आई थिंक एवरीबडी हैज गॉट। तो हर्षल वापस क्यू आई के जगह पे क्या आएगा? Q3। Q3 आएगा। वैल्यू ऑफ आई क्या हो जाएगा? वैल्यू ऑफ 3। वैल्यू ऑफ 3। n+1 क्या हो जाएगा? 19 + 1 upon 4। अपॉन 4, परफेक्ट। अभी ये मेरे को बताओ, 19 + 1 कितना है हर्षल तुम्हारे हिसाब से? 20। 20 × 3 क्या आएगा? 20 60। तो 60 अपॉन 4 ऑब्जर्वेशन। व्हाट इज 60 अपॉन 4 हर्षल? 15, राइट? हेलो, ये खुद को म्यूट कर रहा है, मेरे नाम डाल रहा है। अभी बोलेगा मैंने म्यूट किया। हेलो हर्षल। हेलो। हाँ, हेलो मैंने म्यूट सर। किया। सर आपने नहीं म्यूट किया, नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है कुछ सर। अच्छा अच्छा, हाँ वही मुझे भी ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं नहीं म्यूट कर पा रहा हूँ, कर सकता हूँ, क्योंकि मैं अभी, इफ यू सी, आई एम राइटिंग ऑन द पैड, तो मेरा स्क्रीन से हम्म। हाथ बहुत दूर है। हाँ हाँ। ठीक है। तो 15th ऑब्जर्वेशन कोई बात नहीं, होता है। हाँ 15th 15। ऑब्जर्वेशन क्या आएगा? 41। परफेक्ट। तो ये 10th ऑब्जर्वेशन था, तो ये 11th 12th 13th 14th एंड 15th, तो ये हमारा हो जाता है Q3। ओके, सो Q3 हो गया 41, दैट इज द third, 10th observation, 15th observation. I hope everybody understood. Thank you, Harshal. I'll mute you, Harshal. Thank you. वेलकम सर। Yeah. Everybody got the answer. Everybody understood the sum. This was the first sum, so we had to go. Now, this is a very basic sums. Well, as we move ahead, the complications will increase. Okay, Sneha has understood. Please be. सब लोग बात करो, message करो. Be interactive. तो मुझे समझे. It was easy, right? Very good, Sneha. Vedangi, yes, thank you, Vedangi, for answering. Yes, Sachi, very good. Thank you, Sachi. Prathamesh, very good. Tanisha, very good. Richard, Sujal, very nice. Tanvi, very nice. Very nice, Nikhil, Dian Nagar, Manish, and Saidham. Uh, Varun will answer us our next questions. Okay, I have to talk to Varun. Okay, now let us go to the exercise sum. Compute all the quartiles for the following series of observation. Okay, and we will start. I want everybody to start arranging the data in the ascending order first. Everybody start arranging the data ascending order first. Everybody start solving the answer. We'll see what are the difficulties that we face. This is a bit different type of sum. Okay, everybody start. Arranging. Once arranging is done, please let me know. Everybody. See, everybody has to solve the sums together. I can't keep on teaching. Math means you have to write with me.
Compute all the quartiles for the following series of observations: 16, 14. Okay, anybody who has done it? I would like to discuss this sum with somebody who has done. पहले ascending order में करो. Manish is done. Manish, actually क्या होता है? If internet is a bit down from your side ना, तो unmute नहीं हो पाता है. मतलब either of our side. Manish हो गया unmute. Hi Manish. Hello, sir. Good morning. Good morning, sir. Happy Independence Day to you. Happy Independence Day to you as well. Manish, you understood the previous sum? Yes, sir. Manish, you're from which school? Gyan Kendra. Gyan Kendra. Perfect. Manish, okay. First, we will arrange the data in the ascending order for me. Okay. So everybody start doing the sum. Hate is done. Okay, Manish, can you tell me arrange the data in the ascending order for me? 10.5, Okay. 10.6, Okay. 10.7, Okay. 10.9, Okay. 11.1, Perfect. 11.5, Okay. 11.8, Very good. 12, Yes. 12.6, Yes. 13, Perfect. 14. 13.5 भी है ना एक? Oh, yeah, sorry, I missed that. 13.5, Mm-hmm. and then 14, Mm-hmm. 14.9, Yep. 14.5 also. Before 14.9, 14.5, 40.9 and 16. 16. अच्छा, क्वार्टाइल का फॉर्मूला बताओ मुझे, क्या आएगा क्वार्टाइल ढूंढने के लिए? पहली बात तो n कितना है बताओ. हमारा n है हेत ने आंसर दे दिया, which is right. हेत, very 15. Perfect. Perfect Manish, n is 15. तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला पता है तुमको? क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है फॉर अनग्रुप डेटा? QI is equals to value of I and plus 1 upon 4 ऑब्जर्वेशन. परफेक्ट. तो पहले Q1 ढूंढते हैं. Q1 ढूंढ रहे हैं, तो I के जगह पे क्या आएगा मनीष? 1. Q के जगह 1, I के जगह पे आएगा 1. वैल्यू ऑफ I मतलब क्या हो जाएगा वापस? वैल्यू ऑफ 1. और n plus 1 क्या हो जाएगा? 15 plus 1 upon 4. Perfect. Now everybody, what we did in this is, since we are starting with quartile 1, सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया? I के जगह पे 1 सब्स्टिट्यूट किया और n के जगह पे 15 सब्स्टिट्यूट किया. Now Manish, what is 15 plus 1? 16. अच्छा, what is 16 into 1? 50. What is 16 upon 4? तो ये 16 plus 1 into 1 क्या है? तो 16 upon 4 आया. 16 upon 4 क्या होता है मनीष? 16 upon 4. 4 4 जा 16. 4 4 जा 16. तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन. तो आंसर क्या आएगा? ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन. ये हो गया हमारा Q1. तो Q1 हो गया 10.9. ओके. नाउ मनीष Q2 ढूंढो जल्दी जल्दी. और अनम्यूटेड रहो, हम लोग ये पूरा सम साथ में करेंगे. ओके मनीष? Yes. एनीबॉडी हु गॉट Q2? Okay, Sujal has got all the. Sir, I've got the. You got Q2? Yes, sir. Okay, तो हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे पहले. QI क्या हो जाएगा मनीष? QI second 2 हो जाएगा, second quartile. Second quartile. तो वैल्यू ऑफ I into n plus 1 क्या हो जाएगा? 6 second 2 into 16 upon 4. क्या बात है? 2 into 15 plus 1 upon 4. 1 upon 4. 15 plus 1. I के जगह पे स्टूडेंट्स हम लोग ने 2 डाला और n के जगह पे 15. तो अभी 15 plus 1 happens to be 16 और 16 into 2 क्या हो जाएगा? 32. What is 32 upon 4? Yes. 4 how much is 32? 4 8 जा 32, sir. 4 8 जा 8th ऑब्जर्वेशन आंसर आएगा. तो 8th ऑब्जर्वेशन क्या आ जाएगा? ये 4th आता है. 12. तो if you see 12th observation will be our Q2. Okay. Sir, one question, sir. Yep. Sir, you multiplied 2 into 16, right? So before we multiply, if we divide, it will be okay. If we divide 16 by 4. हाँ चलेगा. 16 by 4 करोगे तो 4 आएगा. 4 2 8 हो जाएगा. चलेगा. Not a problem with this situation. Answer same ही आएगा. Okay, Manish, we can go ahead. Q3 ढूंढ लेते हैं. Okay, तो QI हो जाएगा Q3. वैल्यू ऑफ I हो जाएगा वैल्यू ऑफ 3.
n plus 1 हो जाएगा 15 plus 1 upon 4 observation. Yeah. Now you can solve it as you wish. 15 plus 1 is 16. 16 3 हो जाता है 48. 48 upon 4 हो जाता है 12th observation, and Manish will tell me what is the 12th observation. ये देखो Q2 8th observation है. तो ये 14th, 9th, ये 14th. 10th, ये 11th और ये 12th. Exactly Yeah. what Manish told us. That is Q3 will be 14. तो Manish समझा ये sum? Yes, sir. Easy? Yes, sir. Yeah, great. Easy peasy sum. Okay, thank you so much Manish. I'll put you on mute. Thank you, sir. Okay, अभी तक किसी को कुछ डाउट है प्लीज बोलो मुझे, और इट इज अंडरस्टूड. अंडरस्टूड एवरीबॉडी? अंडरस्टूड अंडरस्टूड. समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है. जल्दी 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 लिखो. यस यस नो यस नो, नो डाउट. अक्के निखिल, अक्के तन्वीन, अक्के स्नेहा, अक्के सुजल, परफेक्ट वेदांगी, अक्के अंकित, अक्के वरुण, विचल, हर्षल, ऋषिल, क्रिश. वेरी नाइस. ओके ओके परफेक्ट. अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम्स की तरफ जाते हैं, ठीक है? थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सम की तरफ जाते हैं. ओके, आई थिंक एवरीबडी विल हैव टू स्टार्ट सॉल्विंग. एवरीबडी स्टार्ट सॉल्विंग. Q1 एंड Q3 ढूंढना है. छोटा सा डेटा है, टेक्सचुअल सम नहीं है ये, बिकॉज देयर इज नो Q for Rajasi. I explained why there is only Q1, Q2, Q3. If you remember Rajasi, क्योंकि Q4 आएगा ही नहीं ना, क्योंकि डेटा को अगर 4 पार्ट में डिवाइड करना है, then there is only 3. Okay, for Rajasi, I'm just going back to the screen. Give me a moment. देखो ना Rajasi, this is Q1, this is Q2, this is Q3. तो 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए मुझे 3 पार्टीशंस डालने पड़ेंगे ना, बिकॉज थर्ड पार्टीशन में मेरा फोर्थ पार्टीशन ऑटोमेटिकली आ गया. ओके, Q4 के आगे कुछ होता नहीं है तो Q4 आएगा नहीं. आई होप आई एम answering you, Rajasi. You understood, Rajasi? Okay, great. Okay, solve this sum and let us see. I'll pick up somebody to discuss the sum. Quickly solve karo, quickly. Welcome, Rajasi. This sum is not from textbooks, Neha. I've just taken a sum so that I can explain. Okay, Heth has arranged it. Okay, I'll pick up somebody. Yeah, Heth, right. Start finding the quartile, Heth. Start finding the quartile and tell me what is the answer. The real fun begins when we go to group data, and then we go to percentile, then we go to decile. There's a lot to come. Quickly, I'm giving you 2 more minutes. Give me the answer of quartile 1. Okay, Varun. Yes, Sachi. Yes, Prithvi. Yeah, but अभी आगे क्या करना है? That is the biggest challenge. Okay. Okay. Yes, the answer is coming in point. हम किसी को पिक करें? Let us see. Okay, what we'll do is we'll pick up Linesh. Linesh Pujari. Hello, Linesh. Yes, sir. Very good morning, Linesh. Morning, sir. Good morning. Happy Independence Day once again.
Happy independence, sir. Thank you. Okay, so सबसे पहले लिनेश, you will arrange the data for me. Okay, Linesh? Yes, sir. Okay. Can you tell me the data in ascending order? So 1, 1. 2, Yep. 3, Yep. 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 11, 11, 12, 12. 15. क्या बात है? Can you tell me what is the number of observation? Sir, 12. 12. Okay, तो क्वार्टाइल का फॉर्मूला क्या है? Sir, point में आना answer. फॉर्मूला बता ना, फॉर्मूला. I bracket n plus 1 upon 4 ऑब्जर्वेशन. observation. तो क्वार्टाइल 1 ढूंढेंगे हम लोग पहले. Yes, तो sir. Q1 हो जाएगा वैल्यू ऑफ I into n plus 1 हो जाएगा 1 into 12 plus 1. I के Yes. जगह पे 1 और n के जगह पे 12. Now, you tell me, Linesh, what Yes, is sir. 12 plus 1? 13. What is 13 into 1? 13. 13. तो 13 upon 4 ऑब्जर्वेशन आया, तो क्या Yes. आएगा डेसिमल में वैल्यू? 3.25. 3.25 ऑब्जर्वेशन. अच्छा, अभी लिनेश हम लोग दोनों मिलके सबको एक्सप्लेन करेंगे ये पार्ट. Yes, sir. स्टूडेंट्स हु आर अटेंडिंग द लेक्चर फॉर द फर्स्ट टाइम, थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है. फर्स्ट सम में कंफ्यूजन होगा इसका, फिर एक हाथ सम में समझ में आ जाएगा. डोंट वरी. नाउ मुझे आया 3.25. तो है ना लिनेश, ये Yes, sir. सबको ना अपन दो पार्ट में तोड़ेंगे. 3.25 में एक डेसिमल से पहले और एक डेसिमल के बाद. अभी 3.25 है तो कहना इसे डेसिमल से पहले 3 है Yes, sir. और डेसिमल के बाद में बोलूं 0.25 है. Yes, sir. है ना? Everybody understood how did I split? How did I split? Everybody understood 3 and 0.25. Type yes everybody if you understood. 3.25 को मैंने लिखा 3 और 0.25. Okay. Okay. अभी ये जो 3 है ना लिनेश, यहाँ Yes, पे हम sir. लोग 3 नहीं लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे थर्ड ऑब्जर्वेशन. क्या लिखेंगे? Third observation. थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस अभी ये 0.25 है ना, Yes, sir. उसके आगे ब्रैकेट डालेंगे. अभी यहां तक समझा सबको? सब लोग बताओ. 3 plus 2.5 था तो मैंने लिखा थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू समथिंग. यहां तक समझा? परफेक्ट. ओके ओके, आई एम गेटिंग ग्रेट. अच्छा लिनेश, अभी मुझे बताओ यहां पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है? यहां पे कौन सा ऑब्जर्वेशन है? Third observation, sir. व्हाट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन का नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या है? 4. तो हम लोग क्या करेंगे मालूम है? हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 0.25 इंटू, हमेशा यहाँ पे जो भी ऑब्जर्वेशन है उसका नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस यहाँ पे जो ऑब्जर्वेशन है वो ऑब्जर्वेशन. So 1. हाँ, नहीं नहीं, ये समझा तुमको पहले? Yes, sir. ये समझा सबको? पहले ये प्रोसेस समझने की कोशिश करो. सिंस देयर इज 3.25, वी विल राइट थर्ड ऑब्जर्वेशन प्लस 0.25 इंटू नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन माइनस द ऑब्जर्वेशन. अगर यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे आया 4 माइनस 3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन. और हमेशा ये दोनों को सब्ट्रैक्ट नहीं करते लिनेश, इसके लिए मैंने बोला होल्ड करो, क्योंकि Okay, 4 sir. माइनस 3 नहीं करेंगे. इसका जो वैल्यू रहेगा माइनस इसका जो वैल्यू रहेगा, यहाँ पे 1 ही आ रहा है. दैट वी आर लकी. अगर लिनेश, अच्छा मुझे बताओ, अगर यहाँ पे 5.25 होता तो लिनेश, अगर Yes, sir. 5.25 होता तो क्या लिखते हम लोग? सब लोग एक मिनट, लिनेश बताओ मत, 2 मिनट. सब लोग मैसेज में टाइप करो, अगर 5.25 होता तो क्या रहता था? 5.25 लेता तो हम लोग क्या लेते थे? इसको सॉल्व कैसे करने का आगे मैं बताता हूं, लेकिन क्या लेते थे? देन लिनेश विल टेल अस. 5.25 रहता तो हम लोग, ये स्टेप मेरे को बताओ, ये जो स्टेप मैंने लिखा है 3.25 के बाद, तो 5.25 के बाद क्या आएगा? यस यस यस, लिनेश अभी तुम बताओ. Fifth observation plus 0.25 into fifth observation, sixth observation minus fifth observation. सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन माइनस फिफ्थ ऑब्जर्वेशन. परफेक्ट परफेक्ट. बहुत सिंपल है. अगर इधर 5 है तो इधर 6 आएगा, इधर 7 है तो इधर 8 आएगा, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन आएगा. और थोड़ा सा ध्यान देने का, जैसा देखो लिनेश ने बहुत क्लियरली बताया कि ये सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन है. बहुत लोग गलती क्या करता है, इधर 6 माइनस 5 लिख देता है, फिर 1 ही आएगा ना हमेशा. Yes. फिर फॉर्मूला को मतलब क्या है? तो अभी हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन, ये सब में थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 1 2 3. थर्ड ऑब्जर्वेशन 3 है Yes, sir. प्लस 0.25 को हम लोग वैसे ही लिखेंगे. बराबर. ओके. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ ऑब्जर्वेशन? ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और फोर्थ ऑब्जर्वेशन क्या है लिनेश? 4. 4 और माइनस ब्रैकेट में क्या आएगा? माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन. तो थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है? 3. ये फोर्थ ऑब्जर्वेशन है और ये मेरा थर्ड ऑब्जर्वेशन, तो 4 माइनस 3. अभी इसको सॉल्व करेंगे. एक बार वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया, यहाँ पे देखो थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज 3, फोर्थ ऑब्जर्वेशन वाज 4 एंड थर्ड ऑब्जर्वेशन वाज वंस अगेन 3. हमेशा ऐसा होगा क्या? क्योंकि वैल्यूज विल चेंज.
right? So 3 as it is, 0.25 as it is, 4 minus 3 is 1, and 3 plus 0.25 will be 3.25 will be the answer. Yes, samjha Linesh? Yes, sir. Everybody understood? Everybody. Yes. No doubts, right? Now, Linesh, unmute रहो और Q2 solve करो और मैं Yes, sir. बोलूंगा तब आंसर बताना. I want everybody to start solving for Q2. Sir, Q3 na? Sorry, Q3. हाँ, I'm so sorry. Okay, Ankit super fast once again. अंकित हो गया तो मुझे बता देना. Okay, done. Heth is done. Tanisha is done. Tanisha, can you write the answer also? Everybody has given me different answer. I'll tell you. Prithvi has given me a different answer. Sachi has a different answer. Okay. Manish has given me the answer. I am not going to tell who is right, who is wrong right now. Let's wait. Yes, Neha. Sir लिखा है, आगे भी लिखो. Done. Very good, Harshal. Very good, Bharat. आंसर लिखो, आंसर. डन मत लिखो. स्नेहा को नहीं समझा. हम लोग स्नेहा को भी अनम्यूट करेंगे साथ में. लिनेश हो गया? Yes, sir. Just a second, Linesh. Hello, Sneha. Hi, sir. Good morning. Good morning. Happy Independence Day. Happy Independence Day. So we have two Snehas in Vikroli, right? Okay, you had the doubt, right? Yes, sir. Okay, so Linesh, ready? We will explain Sneha. Yes, sir. Okay. So Sneha, wherever you don't understand, you have to ask a question. ठीक है? Linesh is explaining. So Okay, सबसे sir. पहले लिनेश क्या करो? QI के जगह पे क्या आएगा? Q3 is equals to? Y3 क्योंकि हम लोग क्वार्टल 3 ढूंढ रहे हैं. Yes, sir. Is equal to Value of I n plus 1 upon 4 observation. हाँ, तो I के जगह पे 3, N के जगह पे 12. स्नेहा, Yes, ये समझा? Yes, sir. Okay. Sneha, what is 12 plus 1? 13. What is 13 into 3? 39 upon 4. 39. Perfect. What is 39 upon 4? 9.75. 9.75. Okay? 9.75 observation. स्नेहा यहाँ तक समझा? Yes, sir. इसके आगे नहीं समझा रहेगा ना? नहीं. Okay. स्नेहा, अभी एक मिनट ना लेने शायद explain her, फिर तुम Yes. बताना. What is here? कौन सा नंबर है इधर? 9. 9. तो हम लोग लिखेंगे 9th ऑब्जर्वेशन. जो भी यहाँ पे नंबर है वो ऑब्जर्वेशन. अगर यहाँ पे 10 होता तो 10th ऑब्जर्वेशन, 11 होता तो 11th ऑब्जर्वेशन, 15 होता तो 15th ऑब्जर्वेशन, राइट? Okay. अच्छा, ये 0.75 है अभी. स्नेहा, Yes, sir. ये 0.75 है तो इसको लिखूं, क्या लिखूं इधर? 0.75. 0.75. 0.75. 75. ओके. अच्छा, अभी ये कौन सा नंबर है? 9. तो इधर आना चाहिए 10 और 10. इधर आना चाहिए वही सेम नंबर. समझा? Okay. अगर इधर हाँ. 10 होता तो इधर क्या लिखता मैं? 11. 11 minus 9 लिखना. 11th ऑब्जर्वेशन माइनस 10th ऑब्जर्वेशन. अगर इधर Yeah. 15th ऑब्जर्वेशन होता तो क्या लिखता था मैं? 16th minus 15. ये समझा? 15. Okay, Linesh, what is the 9th observation?
So ninth observation. एक सेकंड सर. 1 2 3 4 5 6 7 11 है ना? 9. 9. So ninth observation will be 9. What will be 0.75, Linesh? Sir 2.75. It will be 0.75 only. Oh sorry. पहले substitute तो करो. अच्छा. What is 10th observation minus 9th observation? Sir 11 minus 9. ये होगा उसका next observation 11 minus 9. स्नेहा ये समझा? Yes, sir. Okay. 9 as it is. 0.75. अभी actually ये 0.75 है. 11 minus 9 होता है 2. Right? Yes sir. अभी 2 into 0.75 करोगे. 0.75 into 2 करोगे. ये मुझे दिखाना नहीं चाहिए फिर भी. 7 to the 14, 14 plus 1 15, दो बार डेसिमल है तो 1.50, 1.5 आएगा, राइट? हाँ. Okay, what is 9 plus 1.5? 10.5. 2.5. समझा? और भी लोगों को कंफ्यूजन रहेगा, लोग बोलते नहीं है क्योंकि इसमें एक्चुअली थोड़ा कंफ्यूजन आता है सबको. नो, इट कैन नॉट बी 19.5 स्टूडेंट्स. देखो 9 पॉइंट कुछ नहीं है, मतलब 9.0 होता है और 1.5 ऐसा ऐड करते हैं हम लोग. तो बहुत लोगों का डेसिमल में एडिशन का बेसिक्स का तकलीफ है, तो 10.5. Q2 क्यों फाइंड नहीं किया? Varun from Saidam, the most intelligent student from Saidam, who also acts very smart in the chat box, जो मेरे को मिलेगा तो बहुत मार खाएगा. अभी उसको स्नेहा बताएगी. स्नेहा, हम लोग ने Q2 क्यों नहीं फाइंड आउट किया? क्योंकि Q2 पूछा ही नहीं है. अरे वरुण, सुना क्या? उसको बोलो जरा. वरुण, पढ़ो क्वेश्चन. मैं तो ऐसे ही लिखी. ठीक है. थैंक यू स्नेहा. थैंक यू लिनेश. Thank you sir. Thank you, sir. Okay. I hope Varun we answered your question. हाँ, अभी वो स्माइली भेजता है. बहुत स्मार्ट है वो. Okay, I believe everybody got the answer. ये समझ में आया सबको? Okay, with this we go ahead to the next sum, students. Okay, now I believe everybody should solve it on your own. सबसे पहला अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में. सबसे पहला अरेंज करो असेंडिंग ऑर्डर में. मैं तुमको डेट स्टार्ट का कुछ स्टेप्स करके दे देता हूँ, अरेंज करके दे देता हूँ ताकि थोड़ा स्पीड बढ़ जाए अपना. और N12 है. हमको QI का फॉर्मूला मालूम है. हमको ढूंढना है Q1 क्योंकि 25% एंड बिलो पूछा है तो Q1 आएगा क्योंकि 25% तक Q1 होता है. चलो अभी क्विकली सॉल्व करो, क्विकली. यस साची. साची हैड मेंशन्ड सर. साची, कोई डाउट है साची? You have to attend school meetings. What time is it, Sachi? Okay. Okay, Sachi, what you can do is you can go and attend your school meetings. यहाँ के आगे का जो half an hour का lecture है, watch it on the recording. We'll send you the recording. Okay, Sachi? Yeah. Welcome, Sachi. Done, everybody? Done. Okay, Vedangi has already completed the sum. So let us speak to Vedangi. Good morning, Vedangi. You can hear me, Vedangi? Yes. Yeah, happy Independence Day, Vedangi. Same to you, sir. Thank you. We'll just wait for 2 minutes so that I give everybody enough time to finish the sum. Okay, Sujal has got the answer. Okay, Harshal says he's done. Okay, Sujal, I want you to check your answer once. Ankit. Good, Ankit. Okay, Vedangi, हमको Q1 क्यों ढूंढना है वो समझा तुमको सबसे पहला क्वेश्चन? 25% बोला और मैंने फर्स्ट स्लाइड में समझाया था कि फर्स्ट 25% इज Q1, 50% इज Q2, 75% इज Q3, राइट? अच्छा, तुम्हारा सोसाइटी में इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन चल रहा लगता है, राइट? हाँ, नीचे गाने शुरू है. नीचे गाने शुरू है. तुम गए नहीं चाय कॉफी मिठाई खाने, जलेबी वलेबी? नहीं, बुलाया नहीं रहेगा तुमको. मैं घर पे ही हूँ. अच्छा, ठीक है. मालूम पड़ा उधर ही बैठ के खा रही और लेक्चर अटेंड कर रही है. नॉट अ प्रॉब्लम. नहीं. ठीक है. तो वैल्यू ऑफ आई की जगह पे क्या आएगा वेदांगी?
Q1 ओके Q1 हो गया, वैल्यू ऑफ I हो जाएगा वैल्यू ऑफ 1 1. और n है 12 प्लस 1, बराबर. Yes. नाउ स्टूडेंट्स हाँ. n हमारा 12 था, हमको यहां से मिला, और I हमारा 1 था. वेदांगी 12 प्लस 1 11 था ना? 11 था क्या? चलो हम लोग गिनते हैं. हाँ? नहीं 12 ही है. पक्का? हाँ. ठीक है, कोई बात नहीं. तो अभी यहाँ पे कोऑर्डिनेट करो, हम लोग कैलकुलेट करते हैं अभी यहाँ पे. व्हाट इज 12 प्लस 1? हाँ 13. 13 into 1 13. 13. 13 upon 4 3.25. ठीक है. Yeah. अच्छा. 3.25. Now you got to tell me 3.25 है तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे? नेक्स्ट स्टेप, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. Value of third observation. वैल्यू ऑफ थर्ड ऑब्जर्वेशन. Plus- वाई 3? वाई थर्ड ऑब्जर्वेशन? क्योंकि यहाँ पे 3 है, राइट? Yeah. और Plus अभी 0.25 0.25 and value of fourth observation minus value of third observation. परफेक्ट. यहाँ पे देखो जो फर्स्ट है प्लस के पहले जो आया 3 पॉइंट था, तो इधर थर्ड ऑब्जर्वेशन आया, और अगर यहाँ पे थर्ड ऑब्जर्वेशन आया तो स्टूडेंट्स याद रखो यहाँ पे फोर्थ माइनस थर्ड ऑब्जर्वेशन ही आएगा. एग्जैक्टली व्हाट वेदांगी इज ट्राइंग टू टेल अस. अच्छा वेदांगी, व्हाट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन? 190. थर्ड. तो हमारा थर्ड ऑब्जर्वेशन 190 है, तो 190 प्लस फिर क्या आएगा वेदांगी? 0.25 0.25. फिर ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? Into- फोर्थ ऑब्जर्वेशन या into 195 minus 190. या फोर्थ ऑब्जर्वेशन हमारा 195 माइनस 190, दैट इज द थर्ड ऑब्जर्वेशन. परफेक्ट. तो 190 एज इट इज लिखेंगे. 0. अच्छा मेरे को बताओ 195 माइनस 190 कितना होता है? 5. 195. हाँ, तो हम लोग अभी 0.25 इंटू 5 करना पड़ेगा. मैं तुम्हारे लिए मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 5 5 जा 25, 2 5 2 जा 10 12. तो क्या आएगा आंसर वेदांगी? 1.25. ओके 0.25 into, just a second, 0.25 into 5 would be 1.25 and this would be 191.25. फिर फाइनल आंसर लिखना पड़ेगा. इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बिलो 25% of the below 25% of the family life is 191.25 units. समझ में आया वेदांगी? Yes. सबको समझ में आया? सबको आया? वेरी गुड वेदांगी. नाउ यू कैन गो एंड एंजॉय योर स्नैक्स देयर. थैंक यू सो मच. No. Welcome, sir. ओके ना एवरीबडी एल्स सबको समझ में आया? प्लीज प्लीज मुझे यस लिखो. यस. मनीष को नहीं समझा? मनीष डाउट है क्या? 191. मनीष 191 कैसे है? 191.25 आएगा. का गड़बड़ कर दिया? मनीष अंडरस्टूड? यस ने अंडरस्टूड. मेरा राइट है. 191.25 आया तो राइट है देहित. Manish isn't answering. Family consuming the electricity. Acha. Okay, no problem. Okay, now I believe everybody has done and we can go to the next question. Okay, we will go to the next question. Okay. Okay, now once again ungrouped data ही है लेकिन data huge है. I want somebody to interpret this data for me. अभी क्या बोला है देखो. For the following data of daily expenditure of families in rupees, compute the expenditure below which 75% of the families include their expenditure. ठीक है, 75%. मतलब we'll figure out what to do. Now सबसे पहले ये टेबल को कैसे इंटरप्रेट करूं, कोई मुझे बताएगा? ये टेबल दिया है, डेली एक्सपेंडिचर 350, 460, 550, 650, 750 और उसका रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ फैमिलीज दिया हुआ है 16, 19, 24, 18 and 13. Anybody who can tell me? Yes, Rajesh, you're right. Anybody who can tell me interpret कैसे करूं डेटा को? डेटा को इंटरप्रेट कैसे करूं? Somebody new who hasn't spoken yet. Okay, if nobody wants to, I'll pick up randomly. Okay, let's see.
आर्यन फ्रॉम घाटकोपर. हाय आर्यन. हेलो आर्यन. Hello, sir. Good morning. वेरी गुड मॉर्निंग. हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आर्यन. Same to you, sir. थैंक यू. ओके आर्यन, अच्छा ये डेटा का इंटरप्रिटेशन देखते हैं. अब ये सम आर्यन तुम और मैं साथ में करेंगे, ठीक है? डेटा का इंटरप्रिटेशन बता सकते हो कैसे इंटरप्रेट करूं? बता सकते हो आर्यन? I don't know, sir. ओके, नो नॉट अ प्रॉब्लम. अच्छा मुझे बताओ 350 का कितना फ्रीक्वेंसी है, नंबर ऑफ फैमिलीज? 16. तो एक्चुअली इसको इंटरप्रिटेशन कैसा है पता है? 350 350 350 350 ऐसा कितना बार होगा? 16. 16 टाइम. फिर 450 19 टाइम्स है. समझ में आ रहा है इसका इंटरप्रिटेशन? फिर होगा 450 450 कितने बार होगा? 19. 19. तो अभी ये क्या होगा मैं, ये ग्रुप डे की अनग्रुप डे? ये डेफिनेटली अनग्रुप डे, क्योंकि ग्रुप दिख रहा नहीं है ना. क्लास इंटरवल दिख रहा है क्या हमको? नहीं. नहीं. तो इधर फॉर्मूला तो ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा का ही यूज होगा. लेकिन प्रॉब्लम क्या मालूम है यहाँ पर? यहाँ पे डेटा बहुत ह्यूज है. तो अगर मैं सबको अरेंज करूं तो डेटा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना. तो ढूंढना मुश्किल हो जाएगा कि 10th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, 15th ऑब्जर्वेशन कौन सा है. राइट राइट. हाँ. हाँ, डोंट वरी आर्यन. अभी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे में, हम लोग ने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढने को सीखा था. तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मदद लेंगे. फिर हम लोग समझेंगे कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कैसा करते हैं. तो नंबर ऑफ फैमिलीज लिख लिया. ये टेबल में अभी जो जो मैंने भरा वो समझ में आया? हाँ. अच्छा, तुमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप के बारे में सुना है? हाँ. कहाँ सुना है? 10th में. 10th में. क्या बात है, 10th दिया है मतलब तुम लोग ने. वेरी नाइस. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे ढूंढते हैं बता सकते हो? पहले वाला आर्यन भूल Yes, गए? sir. भूल गए क्या? Yes, sir. पहले वाला सेम टू सेम लिखते हैं, कुछ याद आ रहा है? हाँ. फिर 16 प्लस नेक्स्ट वाला करते हैं, याद आ रहा है? 16 plus 19. क्या बात है. 16 प्लस 19 हैपेंस टू बी 35. फिर क्या करूं बताओ? 35 plus 24. 35 प्लस 24 क्या आ जाएगा? 59. फिर क्या करूं? 59 plus 28. 59 प्लस 28. वेरी गुड. 87. फिर 87 Plus 13. 100. तो इसका n 100 होगा. अभी आर्यन 100 ऑब्जर्वेशन है, उसका मतलब समझ में आ रहा है? अभी सोचो हाँ. मैं सबको लाइन में लिखूं और मेरे को कोई बोलेगा 57th ऑब्जर्वेशन कौन सा है, मैं मर जाएगा ना गिनते गिनते. तो इसके लिए क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का मदद लिया जाता है. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड हाउ टू इंटरप्रेट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फॉर एवरीबॉडी. ठीक है, अभी ध्यान से सुनो आर्यन. अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम पे देखो. अच्छा, पहले वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 16. 16. अभी ये 16 का मतलब क्या मालूम है? इसको इंटरप्रेट कैसे है? फर्स्ट 16th ऑब्जर्वेशन ना 350 है. समझ में आ रहा है? हाँ. अगर मैंने पूछा तुमको 13th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 350. 14th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 350. 350. 10th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 350. 350. 16th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 350. अच्छा, अभी नेक्स्ट वाले का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है? 35. इसका मतलब 16 के बाद 17 से लेके 35 तक कोई भी ऑब्जर्वेशन ना, उसका आंसर क्या आने वाला है? 450. तो अगर मैंने पूछा 18th ऑब्जर्वेशन कौन सा है? 450. 30th ऑब्जर्वेशन क्या है? 450. अच्छा, अभी मैं तुमको 2-3 क्वेश्चन पूछता हूं, ठीक है? 62nd ऑब्जर्वेशन क्या है? सब लोग मेरे को मैसेज में भी आंसर बता सकते हैं. 62nd ऑब्जर्वेशन 650. क्या बात है. द फास्टेस्ट वन इज आर्यन ओनली एंड देन हिट. अच्छा, रेडी आर्यन? Yes, sir. 90th ऑब्जर्वेशन क्या है? 90th ऑब्जर्वेशन 750. क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है. वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस. तो आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टूड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को इंटरप्रेट कैसा करते हैं. एवरीबॉडी टाइप यस इफ अंडरस्टूड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों लाया गया है. पहली बात तो व्हाई डू वी यूज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हियर सडनली? ओके, बिकॉज इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई कौन सा ऑब्जर्वेशन कितना है बहुत इजी तरीके से. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. ओके लिनेश, परफेक्ट. ओके, नाउ लेट्स गो अहेड. एक मिनट, मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं. Okay. Now n100 I have, right? Yes, sir. Do you know the formula? Yes, sir. क्या है formula? QI is equals to value of I n plus 1 upon 4 observation. Observation. Perfect. तो I के जगह पे क्या लिखूं मैं? Q1.
Q1 ढूंढू, क्या ढूंढ रहे हैं हम लोग यहाँ पे, देखो जरा। Q3 Q3 परफेक्ट। तो वैल्यू ऑफ I क्या हो जाएगा, I के जगह पे क्या आएगा 3 3, N के जगह पे क्या आ जाएगा 100 क्या बात है, 100 + 1 कितना होता है 101 101, और 101 into 3 कितना हो जाएगा 103 103। व्हाट इज 101 into 3, 103 नहीं रे बेटा, 303। ओके अभी 303 डिवाइड बाय 4, चलो बताओ आंसर क्या आएगा 303 डिवाइड बाय 4, डिवाइड करो आर्यन, डिवाइड करो बैठ के, 303 अपॉन 4 करो। Okay, Sujal has given me the answer. Okay, most of you answer. Aryan आया आंसर, आ रहा है सर। आ रहा है। जल्दी करो जल्दी, मुझे भी जाना है। किसके सोसाइटी में था, गाना बज रहा था, खाना वाना मिल रहा था, मुझे भी जाना है। 75.75 क्या बात है, 75.75। अच्छा मुझे बताओ आंसर कैसे लिखूं फिर मैं, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा 75 प्लस 75th ऑब्जर्वेशन प्लस 0.75 into 0.75 इंटू 76th observation minus 75th observation। ओके परफेक्ट। नाउ अभी ये ना लिनेश, मैं तुमको बहुत अच्छे से ध्यान देना चाहता हूँ। पहले तुम लोग इसको नॉर्मली करेंगे, फिर मैं तुमको एक शॉर्टकट ट्रिक दूंगा फॉर सम्स जहां पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज होता है, ठीक है। ओके आर्यन, ना एवरीबॉडी गॉट टू पे अटेंशन। ओके लिनेश, अभी मुझे बताओ, अभी तुमको दिख रहा है ना स्क्रीन पे 75th ऑब्जर्वेशन क्या है, 75th ऑब्जर्वेशन क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के देख के बताओ 75th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से, क्या आएगा 75th ऑब्जर्वेशन लिनेश। लिनेश बोल रहा हूँ, आर्यन यस सर। हाँ क्या आएगा 75th ऑब्जर्वेशन 650 650 परफेक्ट। 0.75 ऐसी आएगा, फिर 76th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा हमारा 650 650, और 75th ऑब्जर्वेशन भी 650 आएगा। हाँ अच्छा अभी ये 650 वैसी, 0.75 वैसी, 650 माइनस 650 कितना आएगा 0 650, यहाँ पे पॉइंट आना चाहिए था, नहीं है, 0 हो जाएगा। तो 650 वैसी 0.75 into 0 would be 0 यस and that will be 650। ये समझा तुमको? हाँ ओके अच्छा अभी है ना एक छोटा सा चीज मेरे को सबको समझाना आर्यन। अच्छा कैन यू सी यहाँ पे 76th ऑब्जर्वेशन और 75th ऑब्जर्वेशन दोनों सेम है। हाँ अगर ये दोनों सेम है तो इधर हमेशा 0 ही आएगा ना। हाँ तो अगर ये दोनों 0 ही आएगा तो हमेशा आंसर यही आएगा। हाँ तो कैन आई से अगर 76th ऑब्जर्वेशन और ये ऑब्जर्वेशन सेम है तो मेरे को ये सब करने का जरूरत ही नहीं, मैं डायरेक्टली इसका ही आंसर लिख सकता हूं, हाँ क्योंकि हमेशा ये दोनों -0 आएगा। मतलब बेसिकली मेरा पॉइंट क्या मालूम है, अगर 75.75 आया ना, एक बार चेक करो 75th और 76th ऑब्जर्वेशन सेम है क्या नहीं। 75.75 सेम है ना, तो तुम्हारा आंसर क्या आएगा मालूम है, तो ऐसा लिखने का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट इक्वल और ग्रेटर टू 75 इज 87। तो ये 87 है ना आंसर। तो ये जो आंसर आया ये 650 है ना, तो यही मेरा आंसर रहेगा। Q3 विल बी 650। मेरे को ये सब करने का जरूरत नहीं है, ये जो मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा रफ वर्क में किया हुआ है ये सारे स्टेप करने का जरूरत ही नहीं है। हम लोग सिर्फ एक स्टेटमेंट लिखेंगे ऐसा वाला और सीधा आंसर लिखेंगे, क्योंकि मेरे को मालूम है 75th और 76th ऑब्जर्वेशन सेम है तो उनका सबट्रैक्शन 0 ही आएगा और 75th ऑब्जर्वेशन ही मेरा आंसर आएगा। ये समझा सबको? आर्यन समझा? यस सर। अगर ये नहीं समझ में आता तो पूरा वो जो मैंने ऊपर लिखा है वो सब पूरा वापस करने का। हाँ या फिर एकदम सिंपल है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विच इज जस्ट इक्वल और ग्रेटर टू 75.75। ये तुम लोग मीडियन में लिखते थे, याद है मीडियन में सेम स्टेटमेंट। हाँ हर्षल पूछ रहा है 76th ऑब्जर्वेशन और 76th ऑब्जर्वेशन 650 कैसे आया। आर्यन हर्षल का क्वेश्चन है कि ये दोनों 650 कैसे आया। आर्यन तुमको समझाना है। हाँ एक मिनट आर्यन, मैं जरा इरेज कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा
ओके अच्छा आर्यन अभी बताओ स्टूडेंट्स आर्यन ने थोड़ी देर पहले बताया था ना 76th ऑब्जर्वेशन 76 किधर आ रहा है 59 के बाद आ रहा है ना और 87 से पहले आ रहा है तो 59 के बाद 87 तक सारे के सारे नंबर 650 है आई थिंक आई स्टार्टेड विद दिस एक्सप्लेनेशन राइट आर्यन हाँ सर हर्षल समझ में आया हर्षल 59th के बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 87 तक सारे के सारे 650 है ओके परफेक्ट सो आई वांट एवरीबॉडी टू कॉपी डाउन दिस सन आर्यन तुमने कॉपी किया है सम कर रहा हूँ अभी सर अच्छा कर लो कर और एक बार हो गया ना मुझे बता देना मैं तुमको अनम्यूट रख रहा हूँ सो दैट आई कैन चेंज द स्क्रीन डन Done? यस Okay. सर I am giving you 1 more minute, students, to finish the sum. Thank you so much, Aryan. थैंक यू सर Thank you. Okay. Waiting for another 30 seconds and then we move on to the next sum. Done. Oh, okay. Write down the final answer. The expenditure below which 75% of the families include their expenditure is 650. Done. Okay, we are going to move to the next sum. Start solving the sum. Now it's all for you. Find the lower quartile and upper quartile. Lower quartile क्या है और upper quartile क्या है मेरे को बता सकता है? What is lower quartile, everybody? Can you tell me? थोड़ा logic use करके lower quartile is what? Perfect, Rachel. What is upper quartile then? Yes, lower quartile is Q1. And what is upper quartile? Q3. Perfect here. Perfect, Rachel. Perfect. Lower quartile is Q1 and upper quartile is Q3. तो सबसे पहले सब लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ढूंढो चलो फट सॉल्व करो Okay. I'll need somebody who has not answered अब तक. Okay, Manish is done. Hey. Okay, हित एन हो गया पूरा ढूंढो क्वार्टाइल लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल दोनों हो गया किसी का सब लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी सबसे पहले टेबल बनाओ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप ढूंढो पहले वाला सेम टू सेम 5 फिर 5 + 12 आएगा 17 17 + 16 आएगा 33 33 + 14 आएगा 47 + 10 57 + 2 59 तो n हो जाएगा 59 okay good anybody who wants to discuss the sum with me anybody okay हम लोग कल I think Sujal has not answered and Sujal messages me all the answer as well Sujal Jaiswal you're from which branch name नहीं लिखा है वरना मैंने अभी बात किया रहता था Devidyal Shruti raises her hand is there anything that you wish to ask
He is from Mulund. So why don't you rename yourself Sujal? Hi Sujal, good morning. Good morning, sir. Happy Independence Day. Happy New Year, sir. अच्छा अपने आप को रिनेम करो सुजल जायसवाल sir. मुलुंड. Okay, okay. Now what we'll do is we'll find out quartile 1 and quartile 3, okay? Sujal? sir. Okay. सुजल सबसे पहले इधर अनग्रुप्ड का फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा. QI का फॉर्मूला बताओ. QI का formula, sir. The value of I upon 1 is upon 4 observation. परफेक्ट. तो I क्या आएगा? सबसे पहला लोअर क्वार्टाइल ढूंढते तो I क्या आएगा? 1. 1. तो QI हो जाएगा Q1. वैल्यू ऑफ I हो जाएगा 1 और N 59 हमको मिला है तो N के जगह पे मैंने लिख दिया है 59. अच्छा, what is 59 plus 1? 60. What is 60 into 1? 21, 60. 60. 60 upon 4 कितना आएगा? 20. 15. 60 upon 3 20 है ना? राइट सुजल? Yes, sir. ओके. 15th ऑब्जर्वेशन क्या आएगा तुम्हारे हिसाब से? 15 observation, 15 rupees. 15 रुपीज. देखो फर्स्ट 5 ऑब्जर्वेशन 10 है तो 6 से लेके 17 तक सारे के सारे 15 है. आई होप दिस इज वेरी क्लियर. तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी स्टेटमेंट लिखने का विच इज इक्वल टू और जस्ट ग्रेटर देन 15. 15 आंसर आया तो 15 से जस्ट बड़ा कौन है? 17. तो 17th वाला इज माय आंसर. Yes. Q1 is 17. 15. समझ में आया? Yes, sir. Okay. Everybody understood? Anybody has a doubt in Q1? Please let me know. Then me and Sujal will go ahead with Q2. Okay, Tanvi is right. Okay, no doubts. Sujal will go to the next. QI के जगह पे क्या आएगा? Q3 ढूंढते हैं अभी. QI थे 2. हाँ तो 3 आएगा. 3 आएगा और I plus N plus 1. I into N plus 1 क्या हो जाएगा? 3. 3. 59 plus 1 upon. अच्छा, ये I के जगह पे 3 लिखा और N के जगह पे 59 लिखा because N is 59 and I 3 because हम लोग Q3 ढूंढ रहे हैं. Okay, now what is 59 plus 1? 60. 60 into 3 क्या होता है? 180. 180. और 180 अपॉन 4 करेंगे तो 45th ऑब्जर्वेशन. तो 45 से थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है? 25 rupees. हाँ 25 रुपीज. वो कैसे आता है? अनदर टेक्निक. लॉजिकली समझ में आता तो ग्रेट, नहीं तो देखो 45 इधर आया आंसर. 45 से थोड़ा ज्यादा कौन है? 47. और 47 का रेस्पेक्टिव डेटा क्या है? 25. सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 45 is 47. So Q3 will be 25. So the lower quartile is 15 and the upper quartile is 25. I Yes. hope everybody got it. Thank you, Sujal. I hope everybody got it. Yes, yes, Harshal, your answer is right. Quickly copy it down, quickly. If done copying, please let me know. Yes, Neeraj, very good, done. क्या नहीं समझा हेत लास्ट पार्ट में? हाँ, ये स्टेटमेंट बहुत सिंपल है. अगर ये 45 है तो 45 से थोड़ा ज्यादा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन है? 47. तो 47 का रेस्पेक्टिव वैल्यू इज माय आंसर. हित, डू आई आंसर योर क्वेश्चन? यप, ग्रेट. सर ऑड इवन नंबर्स का फॉर्मूला अलग होता है क्या? देखो वो मीडियन में होता था और वो भी हम लोग स्टेट बोर्ड में यूज करते थे. एक्चुअली दो अलग फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है. कोई मेरे को बता सकता है Q1, Q2, Q3 में से मीडियन क्या है? मीडियन मतलब 50%. अच्छा बस कर दो नहीं तो. यस यस निखिल, Q2. परफेक्ट परफेक्ट, क्योंकि 50% है ना, तो हम लोग को इवन ऑड के अलग फॉर्मूला का जरूरत ही नहीं है. वी विल डू इट लाइक दिस. अगर ये फॉर्मूला यूज करते हो I into N plus 1 upon ऑब्जर्वेशन, तो तुमको इवन ऑड के लिए अलग फॉर्मूला का जरूरत नहीं है. ओके. अच्छा, ग्रुप डेटा अनग्रुप डेटा के बारे में बहुत कुछ हो गया. नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद ग्रुप डेटा, व्हिच आई बिलीव आई विल नॉट स्टार्ट टुडे, क्योंकि अच्छा खासा ज्यादा अमाउंट हो गया. ओके.
So nevertheless, I hope आज का lecture समझ में आया. The first lecture of math, and with time it gets a good level. Some 3-4 marks के लिए आते हैं. समझ में आया सबको? Great. Okay, I enjoyed the lecture. Thank you so much, everybody. Thank you. Yes, Manish. One question. Manish has one question. Once I answer Manish's question, I will leave the lecture and end the lecture. Manish, I'm waiting for your question. Varun, itna maar khayega na. Thank you, Rajasi. Yes, you will get the recording in the group. Everybody gets the recording in the group. Don't worry about it. You have personal doubts where I can. Personal doubts matlab? Personal doubt. You can ask me here or later on we'll have doubt solving session tab. Okay. I doubt we have any doubts. Thank you so much, everybody. Bye. Take care. Enjoy.